हेलो टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनामिका और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी की सीरीज हम ये जारी रखेंगे and we'll discuss all the important stuffs one by one. So before I get started, again I would say if you haven't subscribed on Academy Plus, then do it. Use the referral code RANK10 so that you get extra benefit apart from 10% discount. And if you're having any query regarding the subscription thing, then type it in comment box. It will be taken care of. And you can join an Academy Plus. You can use an Academy Plus for preparing UPSC examination, prelims as well as mains interview in a very strategic manner. Educators will help you in all the manner you need to prepare for your examination. Only less than 50 days or something have left, so you can prepare well with an academy, and one subscription with the unlimited benefits you get over here, because there is 100% syllabus coverage, prelims and mains ki test series with evaluation, daily current affairs practice is also done here, and interview preparation is also done here by the top educators. You can join any batches like bilingual batches, Hindi or English, सब में ये available है. So in which you are comfortable, join it. And after that, you can apply UPSC YT code also. But if you use the referral code RANK10, then you get extra benefit apart from 10% this discount. T20 daily current affairs test series is also available. You can, analyze your test, that how much you are scoring and how come like in what manner you can score well in your prelims examination. So आप अपने test को analyze कर सकते हो, that where and all you are making mistakes and how can you minimize your mistakes. Previous year question के analysis यहाँ मेरे द्वारा ही की जा रही है, तो आप उसे watch out कर सकते हो so that you get an idea that how you have to approach a question. You can also click to these links to join us. So we are discussing the national movement 1905 से 1918 का time period. So today in last video we discussed about the moderates, and today we are going to discuss the extremist phase. जो गरम दल की जो नीति थी उसे हम discuss करेंगे. So national movement, let's get started. First of all, the era of militant nationalism. मतलब इसे आप ये कह सकते हो कि मॉडरेट फेज के बाद जो इनका उदय हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे. सो 1890 से 1905 के पीरियड तक आपको पता है कि जब INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, उसके बाद 1905 तक मॉडरेट्स ने डोमिनेट किया. लेकिन उसके बाद जो है उनकी कुछ रणनीतियां जो काम नहीं कर पा रही थी, कारगर साबित नहीं हो पा रही थी, उसके बाद ये मिलिटेंट नेशनलिज्म का जो है वो ग्रोथ होता है. सो क्यों ग्रोथ होता है इनका, आखिर क्या क्या वजह थी जिसने इनको ग्रोथ को एक पुश फैक्टर दिया था, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द नीड, व्हाट वर द रीजंस दैट हेल्प टू ग्रो द मिलिटेंट नेशनलिज्म. First of all, recognition of the true nature of the British rule. As I have said in previous classes also कि जो intelligent लोग थे, इंटेलिजेंसिया जो थे, जो मॉडर्न एजुकेटेड पीपल, यहाँ पे एक मिडिल क्लास जो राइज होने लगे थे, अब उनको ये पता चल चुकी थी कि किस तरीके से ये कॉलोनियल रूल जो है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किस तरीके से उनको वो ड्रेन आउट कर रहे हैं, चाहे वो मतलब इकोनॉमिकली हो या फिर सोशली हो या फिर आपके किसी भी तरीके से हो. तो ये जो इकोनॉमिक मिजरीज हो रहे थे, इनसे इनको ये आइडिया हो चुका था कि जो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो बस अपना फायदा देख रही है. क्योंकि उसी टाइम में क्या हुआ था कि एक तो उनको जो एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर था उनका वो पता चल चुका था. दूसरी बात ये हुई थी कि जो अकाल आया था जिसमें लगभग 90 लाख लोग जो है वो मर गए थे, फिर भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया उनके बेहतर के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री सब तो तबाह हो रही थी, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा था. और ऊपर से अगर अकाल पड़ जाएगा तो जो लोग सिर्फ खेती पे ही उधर शिफ्ट हो चुके थे वहां से भी कुछ नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली पीपल विल डाई. एंड उसके बाद डेक्कन रीजन में भी जो है वो प्लेग की स्थिति आ गई थी जिसने उस रीजन को काफी ज्यादा अफेक्ट किया था, उसके लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया. उसके बाद 1892 का जो काउंसिल एक्ट आया उसमें भी इनके लिए कुछ खास नहीं था, कुछ इनको प्रावधान दिए गए थे, जैसे कि आप बजट डिस्कस कर सकते हो. डिस्कशन से क्या होता है, अगर वो उसको वोट नहीं कर सकते, अगर वोटेड अपॉन नहीं है तो फिर डिस्कस करके क्या होगा, चीजें बताने से क्या होगा, प्रॉब्लम बताने से कुछ नहीं होता, उसको सॉल्यूशन लाने से होता है. तो इनको पावर्स तो दिए गए थे, लेकिन रियल पावर्स किसके हाथ में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थे. 1897 में जो नाटू ब्रदर्स थे उन्होंने जो
ट्रायल इनका हुआ था विदाउट ट्रायल, एंड तिलक एंड अदर्स जो है इनको सेडिशन के चार्जेस में जो है वो सजा दे दी गई थी। मतलब ट्रायल बेसिस एक चीज होती है कि अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है, उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है कि आपने ये पर्टिकुलर क्राइम जो है वो कमिट किया भी है या नहीं। बट इनको सिर्फ है ना विदाउट ट्रायल बेसिस इनको क्या किया जा रहा था कि इम्प्रेजन कर दिया जा रहा था। तो ये चीजें इनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी, ग्रीवेंसेस थे इनके। 1898 में क्या होता है कि एक आईपीसी सेक्शन 124 क्लॉज ए के तहत जो है एक लॉ लाया जाता है, और जिसके बाद इसको फर्दर एम्पलीफाई करके एक नए प्रोविजन के साथ जो है वो ऐड किया जाता है, जिसमें भी कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं जो इंडियंस के हक में बात नहीं कर रही होती हैं। एंड आफ्टर दैट 1899 में क्या होता है कि जो कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेंबर्स, इंडियन मेंबर्स की जो गिनती थी उसको भी कम कर दिया जाता है, उस नंबर को भी कम कर दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है, उसके बाद जो फ्रीडम थी प्रेस की कि वो कुछ भी लिख सकते थे, अपनी चीजों को छाप सकते थे, लोकल पीपल तक पहुंचा सकते थे, उसको भी कर्ब कर दिया गया था। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है उसने ये इंश्योर किया था कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है यूनिवर्सिटी पे वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। तो ये चीजें भी मतलब अगर गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल यूनिवर्सिटीज पे बढ़ेगा तो उसके बाद इंडियंस के हक में वो ज्यादा फैसला तो लेंगे नहीं। दैट वाज द लाइक अश्योर्ड थिंग। आफ्टर दैट ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑफ कोर्स लाइक अब जो लोग थे वो फियरलेस होना शुरू हो चुके थे, उनमें कॉन्फिडेंस आ चुका था, उनको ये चीज पता चल चुकी थी कि सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तिलक ने बात करी, गोखले ने बात करी, सबने कहा कि अगर आपके पास सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने ये डिक्लेयर किया था कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई सिन है, सबसे बड़ी कोई सिन मतलब एक पाप कह सकते हो, तो वो है आपकी वीकनेसेस। ये एक सबसे बड़ा पाप है। सारे वीकनेसेस को आप हटाइए, क्योंकि वीकनेस सिर्फ और सिर्फ एक सिन है और वो मरने के समान है। तो कहते हैं ना कि जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहने वाला रिस्पॉन्सिबल होता है, वो गलत होता है। लाइक दैट ओनली स्वामी विवेकानंद ने डिक्लेयर किया कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जागृत करना है। थर्ड वॉज द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब देखिए सही बात है ना कि एक तरफ जो एजुकेशन स्प्रेड हो रही थी उससे क्या हो रहा था, लोगों में अवेयरनेस आ रही थी। अब अवेयरनेस आएगी, कॉन्शियसनेस आएगी, तो लोग अपने हक के लिए बेहतर जागना शुरू होंगे। उससे क्या होगा, उनको ये चीजें पता चलनी शुरू हुई कि इनकी अनएम्प्लॉयमेंट या जो इनका एक्सप्लॉयटेटिव जो कैरेक्टर है, जो इकोनॉमिकली जो कॉलोनियल रूल हमारी इकोनॉमी को जो ध्वस्त कर रही है, इन चीजों के बारे में वो अवेयर होना शुरू हो गया। तो अब जब अवेयरनेस बढ़ी तो इन्होंने अपने ग्रीवेंसेस जो है वो उनको जाहिर करने शुरू किए, अपने हक के लिए फैसला लेना या अपने हक के लिए बात करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर दैट इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, मैंने कहा कि जो वर्ल्ड लेवल पे चीजें हो रही थी, जितने भी अपसर्जेस हो रहे थे, जैसे कि आपके इटालियन आर्मी का इथियोपिया के द्वारा डिफीट होना, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने और भी बहुत जगह जो है वो डिफीट उनकी हुई थी, उसके बाद रशिया को जापान ने जीता था। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे चीजें हो रही थी जहां एक छोटी सी कंट्री जो एक बहुत ही पुअर और मॉडरेट टाइप की कंट्री मानी जाती थी, वो ऐसे बड़े बड़े जो योद्धा टाइप देश थे उनको हरा दे रही थी। तो इनके मन में भी ये चीज आनी शुरू हो गई थी कि अगर ऐसा लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे हुआ था, जैसे वहां हो सकता है, तो फिर ये इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, हम इनसे भी टक्कर ले सकते हैं, हम इन्हें भी भगा सकते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसेस इन पे काफी ज्यादा जो है वो कारगर साबित हो रही थी, काफी ज्यादा इनके माइंड पे असर कर रही थी। रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन, ऑफ कोर्स देखिए जैसे जितने भी इंटेलेक्चुअल थे, उनके जो लीडरशिप थी, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम वेस्टर्नाइजेशन कर रहे हैं तो हमें अपने बेहतरी के लिए ये चीज करनी है। बहुत सारे इन्होंने इंस्पिरेशन जो है लीडर्स ने देना शुरू किया लोगों को, जिसमें आपके स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चैटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने जो यंग नेशनलिस्ट थे उनको इस बात के लिए जगाया कि आप जो है आपको अपने इंडिया की जो पास्ट है उस पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो आइडियोलॉजी थी ना कि इंडिया शुरू से ही दूसरे नेशन को सर्व करते आया, वो एक मिथ है। इंडिया की जो ग्लोरी है एंसेंट इंडिया में, जब आप जाके देखो
गुप्ताज आए या हुन्स आए, तुर्क्स आए, जितने भी लोग आए, तो यहीं से आपका साइंस का डेवलपमेंट होता है, यहीं से आपका कल्चर डेवलप होता है, यहीं से बहुत सारी और चीजें जो हैं वो डेवलप हुई हैं। तो इंडिया की ग्लोरी को जब इन्होंने, इंडियन सिविलाइजेशन की ग्लोरी को जब इन्होंने लोगों के सामने रखना शुरू किया, तो इनको ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि इंडिया की एक जो पास्ट था वो बहुत ज्यादा सुनहरा था। दयानंद ने पॉलिटिकली भी एक मैसेज दिया था कि इंडिया फॉर द इंडियंस, इंडिया पे सिर्फ इंडियन का हक है, बाहर का कोई भी जो ताकत है, बाहर की कोई भी जो ताकत है वो इसको हमसे नहीं छीन सकती, ये बात थी। और उसके बाद डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स। अब ऑफ कोर्स वो पहले क्या करते थे, प्रेयर करते थे कि भाई ये चीज हमें दे दो, फिर उसके लिए पिटिशन डालते थे, उसके बाद जाके कहीं कुछ नहीं होता था तो वो प्रोटेस्ट करते थे, जो कि काम नहीं कर रहा था। अब जैसे 1892 के आप एक्ट में आपको पता चल ही गया, उन्होंने भाई अपनी जो है इंक्रीज इन नंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर के इंक्रीजिंग नंबर के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो अर्जी डाली, उन्होंने पूरी तो की, लेकिन कितनी, कोई भी एक जो रियल पावर होता है वो तो इंडियंस को दिया नहीं गया था। तो ये सारी जो इनके जो मॉडरेट्स के जो आपके आइडियोलॉजी थी ना, जो मेथड था, वो बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो रहा था, और इसीलिए अब इनको बात पता चल चुकी थी कि अब हमें कोई और रास्ता जो है वो देखना पड़ेगा। आफ्टर दैट रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। अब जो इसके बाद लॉर्ड कर्जन आए थे यहाँ पे वाइसरॉय बनके, तो उनके हक में, उनके कार्यकारिणी में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जो इनको पसंद नहीं आ रही थी। जैसे कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पास किया, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया, जिसमें से कि एजुकेशन को लेके भी कुछ खास मतलब दिया नहीं गया इंडियंस को। कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट लाया, और उसके बाद, इन सब के बाद भी उन्होंने जो किया वो था आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसमें उन्होंने सबसे बुरी चीज ये करी कि उन्होंने मुस्लिम्स और हिंदूज को डिवाइड करने की पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। सो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा लोगों को हर्ट कर गई कि अब तो इंडियंस को ये डिवाइड भी करना शुरू कर चुके हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ अ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, मतलब एक जो यहाँ पे पहले मॉडरेट स्कूल ऑफ थॉट हुआ करता था, अब यहाँ पे एक मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। जो ये जिनकी जो सोच थी वो क्या थी, हेटर्ड था, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा नफरत था फॉरेन रूल से। वो ये नहीं बोलते थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, वो कहते थे हमें स्वराज चाहिए, हमें अपना राज चाहिए। स्वराज मतलब अपना राज। नेशनल मूवमेंट का उनका गोल स्वराज ही होता था, डोमिनियन नहीं होता था उनका। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन जो है ये जरूरत समझते थे उसकी, ये प्रेयर या पिटिशन पे ये बिलीव नहीं करते थे, और उनको ये पता था कि ये जो इंडियन मासेस है इसके लिए कैपेबल भी है, इनको इनकी कैपेबिलिटी पे जो है वो भरोसा भी था, और इनको ये भी कहना था कि बिना सैक्रिफाइस के कुछ भी नहीं मिलता, और अगर कोई ट्रू नेशनलिस्ट है, अगर कोई मतलब एक सच में सच्चा का देशभक्त है, तो वो इसके लिए हमेशा तैयार रहेगा सैक्रिफाइस के लिए, जो कि इन्होंने प्रूफ भी किया था। इमर्जेंस ऑफ अ ट्रेन लीडरशिप, मतलब अब देखिए वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, आवागमन की सुविधाएं हो रही थी, जो भी कम्युनिकेशन जो है रेलवेज के द्वारा या टेलीग्राफ्स के द्वारा बढ़ रहे थे, तो अब ये बहुत ज्यादा अच्छे से अपने आप को चैनलाइज कर सकते थे, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट बना सकते थे, और इस कारण क्या हुआ, इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉन्टैक्ट में रहने लगा, और उसके बाद इनकी लीडरशिप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उभर के बाहर आने लगी थी, और इनको ये चीजें पॉलिटिकल स्ट्रगल में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रही। अब देखिए स्वदेशी एंड बाइकट मूवमेंट जो आता है, तो स्वदेशी और बाइकट मूवमेंट यहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसे। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था, ये स्टार्ट हुआ जब अंग्रेजों ने बंगाल को डिवाइड किया, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, ताकि इंडियंस डिवाइड हो सके हिंदू और मुस्लिम में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का पार्टीशन का डिसीजन कब लिया था, ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो डिसीजन लेने वाला जो ईयर था वो 1903 था। आइडिया इनका ये था कि हमें दो प्रोविंसेस बनाने हैं, एक बंगाल प्रोविंसेस, वेस्टर्न बंगाल, एज वेल एज द प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, और दूसरा हमें बनाना है ईस्टर्न बंगाल और आसाम वाला एरिया, ठीक है। तो बंगाल जो है वो कलकत्ता उसका कैपिटल होगा, और जो ईस्टर्न बंगाल है उसके लिए डक्का जो है वो उसका कैपिटल होगा। ऑफिशियल रीजन इन्होंने, ये इतने तेज थे कि इन्होंने ऑफिशियल रीजन पता है क्या दिया, इन्होंने ऑफिशियल रीजन ये दिया कि जो पॉपुलेशन है बंगाल का, पूरे बंगाल का बिना डिवाइडेशन के बाद, वो 78 मिलियन है,
मतलब अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब इतने बड़े पॉपुलेशन को एक साथ एडमिनिस्टर करना ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है और इसीलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। बट हम इंडियंस इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो क्या ये चीजें समझ नहीं रहे थे कि एडमिनिस्टर करना अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसके लिए, जैसे आज हमारे पास है ना, जहां पे जो बड़े स्टेट है वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, तो आप काउंसिल जैसा कुछ चीज बना दो कि एडमिनिस्टर करने में दिक्कत ना हो, उसको डिवाइड करने की क्या जरूरत पड़ जाती है। और मेरे मन में एक हमेशा सवाल रहता है कि क्या ये चीजें जो आज हर स्टेट अपने डिवाइडेशन की बात करते हैं, जैसे झारखंड अलग हुआ, जैसे आपका उत्तराखंड अलग हुआ, तो क्या ये मतलब वहीं से तो ये चीजें नहीं आती हैं इनके दिमाग में कि भाई अब हमें भी, अभी तेलंगाना अलग हुआ तो मतलब शायद ये चीजें वहीं से आती होंगी इनके भी दिमाग में। सो ये चीजें इन्होंने ऑफिशियल जो है रीजन वो यही दिया। आफ्टर दैट इनको डिवाइड करने के बाद जो है इंडियंस को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि भाई अब तो ये मतलब हमें डिवाइड करने का सोच रहे हैं, तो इन्होंने एंटी पार्टीशन कैंपेन रखा, जिसको कि स्टार्ट किसने किया था ये ध्यान में रखिएगा, मॉडरेट्स ने स्टार्ट किया था इसको एक्सट्रीमिस्ट का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। रियल मोटिव इनका जो था अंग्रेजों का वो ये था कि बंगाल को किसी तरीके से हमें पार्टीशन करके इसको वीक कर देना है, ताकि जो है इंडियन नेशनलिज्म का जो मेन सेंटर ये बंगाल बन रखा है ना, ये बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। ये इनका मेन मोटिव था, जो कि ऑफिशियल रीजन इन्होंने कुछ और ही दिया था। यहाँ पे बेसिस, रिलीजन के बेसिस पे इन्होंने वेस्टर्न हाफ जो है वो हिंदू मेजॉरिटी का रखा, जो कि 42 मिलियन के अराउंड पॉपुलेशन थी, और ईस्टर्न हाफ जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया रखा, जो कि 18 मिलियन के पॉपुलेशन के आसपास थी। तो मतलब हिंदू और मुस्लिम को इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो है वो यहाँ पे लानी शुरू कर दी अपनी। तो अब जो है 1903 to 5 में जब ये चीजें कैंपेन स्टार्ट करनी शुरू हुई, तो उसमें सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, के मित्रा और इन लोगों ने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया। उन्होंने जो है गवर्नमेंट को बाइकट करने के लिए बहुत तरीके की चीजें शुरू करी। जैसे कि उन्होंने जो मेथड अपनाया वो था कि गवर्नमेंट को इन्होंने पिटीशन देना शुरू किया। ऑफ कोर्स ये मॉडरेट्स थे तो पहले पिटीशन ही देंगे, प्रेयर ही करेंगे। पब्लिक मीटिंग इन्होंने रखनी शुरू करी, प्रोपेगेंडा लाया, मेमोरेंडा लाया, न्यूज़पेपर के थ्रू जैसे कि हिताबदी, संजावनी और बंगाली के थ्रू इन्होंने लोगों को जागृत करना शुरू किया कि ये आपको जो है डिवाइड करने वाली एक चीज बनाई जा रही है जिसके लिए आपको बाइकट करना है। गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो ईयर था 1905, डिसीजन 1903 में, पार्टीशन बंगाल का 1905 में हुआ है। अगस्त 7, 1905 को इसके जैसे ही ये पास हुआ, उसके बाद जो बाइकट रेजोल्यूशन है उसके लिए एक मीटिंग रखी गई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में, और वहां पे इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का जो है वो लॉन्च किया था। अक्टूबर 16, 1905 को पार्टीशन के दिन, पार्टीशन जब फोर्स में आया उस दिन पूरे बंगाल में, पूरे नेशन में जो है एक बहुत ही शोक की स्थिति जैसी चीज देखी गई थी। वहां पे आमर सोनार बंगला जो नेशनल एंथम की तरह यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वो गाया था। और आपको मैं बता दूं कि आज के डेट में ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, ठीक है। तो आमर सोनार बांग्ला उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी इंडिया के लिए, ठीक है, इस स्वदेशी मूवमेंट के लिए उन्होंने लिखा था। उस दिन इन्होंने रक्षाबंधन ऑब्जर्व किया, मतलब एक दूसरे के हाथों पर हिंदू और मुस्लिम ने राखी बांधी कि भाई हम भाई भाई हैं, जब भी आपको हमारी जरूरत है, जब भी हमें आपकी जरूरत है, हम आपकी हेल्प करेंगे। एज अ सिंबल ऑफ अनब्रेकेबल यूनिटी इन्होंने ये चीज करी थी कि हम बंगाल को विभाजित नहीं होने देंगे, हम एक हैं। उसके बाद ये जो मूवमेंट है वो पूरे कंट्री में फैलना शुरू हो गया। पूना में तिलक साहब ने, बॉम्बे में, फिर उसके बाद लाला लाजपत राय ने पंजाब में, और अजीत सिंह ने भी पंजाब में, और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, एंड चिदम्बरम साहब ने मद्रास में, ये सारी जो मूवमेंट थी उसको लीड करना शुरू कर दिया था। एंड आफ्टर दैट द कांग्रेस पोजीशन की अगर आप बात करते हो तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी मीटिंग इन्होंने 1905 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ गोखले ये हेल्ड करी, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो रिएक्शनरी जो पॉलिसीज लाई है कर्जन ने, या फिर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया है उसको हमें नहीं मानना है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी डिसीजन लिया कि एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में चल रहा है हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कांग्रेस ने उस समय जो है वो डिसीजन यहाँ पे लिया था।
तो कांग्रेस ने एक हेल्ड किया अपना सेशन 1906 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी, वेयर यहाँ पे इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि स्वराज जो है, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज जो है, ये हमारा लक्ष्य होगा, गोल होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब यहाँ पे आपको यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सेशन ऑफ आईएनसी कांग्रेस के किस सेशन में इन्होंने ये डिसीजन लिया था कि सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज ही हमारा गोल होगा। तो ये जो था ये 1906 का आईएनसी का मीटिंग था जो कि कलकत्ता में हेल्ड हुआ था और प्रेसिडेंटशिप इसकी कौन कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी। सो आप ये क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। और इसी के बाद ये जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिस्प्यूट होना शुरू हुआ कार्यकारिणी को लेके कि भाई मूवमेंट की टेक्निक ये होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो मॉडरेट्स कुछ और कह रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट कुछ और कह रहे थे, इसी बीच में उनमें मतभेद हो गया। और उसके बाद इसी का रिजल्ट था कि जब 1907 का अगला जो सेशन हेल्ड हुआ था सूरत में, उसमें ये मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो स्प्लिट हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। अगेन वन मोर क्वेश्चन कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिस्प्यूट के कारण उनका स्प्लिट किस सेशन में हुआ था, तो ये 1907 का जो सूरत वाला सेशन था वहां पे हुआ था। ईयर भी आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, अब इनके लिए देखिए जो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि एक्सट्रीमिस्ट की जो पॉलिसी थी वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आने लगी। तो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में चल रहा था उसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। मॉडरेट्स की टेक्निक अब इतना कोई पूछ नहीं रहे थे। इसके रीजंस भी थे। अगर आपको पूछा जाए कि इसके क्या क्या रीजंस थे तो 3 मेन रीजन थे। क्योंकि जो मॉडरेट की जो टेक्निक थी जो वो फॉलो कर रहे थे 3P वाला कि प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट, तो ये फेल हो रहा था बार बार। और उसके बाद जो डिसिसिव टैक्टिक्स था गवर्नमेंट का ऑफ बोथ द बंगाल हैड द एमिटेड एंड द नेशनलिस्ट, मतलब कि जो ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल वाला आइडिया था उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो इनको मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये जान रहे थे कि ये हमारी यूनिटी पे एक अटैक है। गवर्नमेंट हैड रिजॉर्टेड टू सप्रेसिव मेजर्स, मतलब फिर इसका एक रिजल्ट ये भी था कि गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत सारे मेजर्स लेके, सप्रेसिव मेजर्स लेके इसको रोकने की जो है, इसको कर्व करने की जो है वो कोशिश कर ली थी। अब एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम, जैसे कि देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लेना शुरू कर दिए यहाँ पे। जब इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट किया ना तो इसने सारी चीजें स्वदेशी मतलब अपने देश की, तो सारे जो फॉरेन गुड्स और ये सब थे उसको बाइकआउट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ये गाया, वंदे मातरम गाया, ये सब गाया। लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि इनको बैन कर दिया कि आप कोई भी वंदे मातरम जो है वो नहीं गाएगा। अगर कोई गाता हुआ पकड़ा गया तो उसको सजा मिलेगी। फिर पब्लिक मीटिंग पे इन्होंने रोक लगा दी। फिर इन्होंने जितने भी स्वदेशी वर्कर थे सबको इम्प्रिजनमेंट देना शुरू कर दिया। तो पुलिस और लोगों के बीच में झड़प होनी शुरू हो गई, बहुत सारे लीडर डिपोर्ट किए जाने लगे। और उसके बाद जो है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को सप्रेस करके इस मूवमेंट को जो है वो फाइनली कर्व कर दिया गया था। क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस ही ये लोग छीन लेंगे तो लोगों तक ये जानकारियां कैसे पहुंचेंगी कि नेशनल मूवमेंट कैसे चलना और क्या करना है। अब है आपका द एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम। इन्होंने क्या क्या प्रोग्राम लाए। मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेजेंट कंडीशन इम्पॉसिबल, मतलब इनका ये था कि ऐसी स्थिति ला दो ना कि ब्रिटिश का किसी भी तरीके से बस हार हो, या तो वो जो हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो उनका बंद हो जाए, उनका खर्चा पानी ही बंद हो जाए। और दूसरी बात कि हम अगर उनको हेल्प ही नहीं करेंगे, हम अगर उनको, जैसे इंडिया में तो वो इंडियन से ही काम लेंगे ना। अगर हम ऑफिस जाना ही छोड़ दें, अगर हम कॉलेज जाना ही छोड़ दें, अगर हम ड्यूटी अपनी करना ही छोड़ दें, तो किसी न किसी तरीके से ये डिफीट किसका होगा, अंग्रेजों का होगा। ये इन्होंने कहा कि भाई अब हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, हम आपकी कोई बात जो है वो सुनेंगे ही नहीं। After that, political freedom is the liberation, life breath of nation। अरबिंदो घोष ने ये कहा कि पॉलिटिकल फ्रीडम होना एक देश के लिए उसके ब्रेथ के समान है, उसकी सांसें हैं पॉलिटिकल फ्रीडम। तो पॉलिटिकल फ्रीडम हमें मिलना चाहिए। ये चीजें इन्होंने अपने प्रोग्राम में शामिल किया जो कि अरबिंदो घोष ने कहा था। उसके बाद एक नया फॉर्म ऑफ स्ट्रगल इन्होंने शुरू किया। नया फॉर्म ऑफ स्ट्रगल मतलब इन्होंने फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया, पब्लिक मीटिंग रखा, प्रोसेशन रखा। और उसके बाद इन्होंने समिति बनाई, कॉर्प्स ऑफ वॉलंटियर्स, और समिति बना के, जैसे स्वदेश बांधव समिति और जो अश्विनी कुमार दत्ता ने बनाई थी, वो इन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि लोकल मासेस को ये अपनी चीजों में शामिल कर सके। उसके बाद इन्होंने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लाना शुरू किया लोगों में, लेक्चर के द्वारा या फिर स्वदेशी सॉन्ग्स के द्वारा, या मोरल कुछ ट्रेनिंग दे के इनको, या फिर
सोशल वर्क करके, जैसे कि फेमाइन और एपिडेमिक जैसी स्थिति जिन रीजन्स में हो रही थी वहां पे जाके लोगों की मदद की इन्होंने। फिर लोगों से कहा कि देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, आपको देख नहीं रही है, हम ही आपको काम आएंगे, और इस तरीके की चीजें जो भी मोरली वो कर सकते थे, जो कि आज के डेट में पॉलिटिशियन करते हैं, वही चीजें वो कर रहे थे, लेकिन वो रियल मीन में कर रहे थे, आज के पॉलिटिशियन जैसा नहीं। इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स एंड मेलास। अब इनका ये था कि हमें हमारा इंडिया का कल्चर खोता जा रहा है, तो इसीलिए लोग वेस्टर्न तरफ ज्यादा जा रहे हैं, ज्यादा झुक रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि अब अपनी चीजों को लाना शुरू किया। जैसे कि तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल जो है वो मतलब इसका यूज किया, स्वदेशी प्रोपेगेंडा ये बनाने के लिए इन्होंने गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल जो है वो मनाना शुरू किया। बंगाल में भी ट्रेडिशनल फोक थिएटर बनाए जाने लगे, ताकि जो लोकल लेवल पे चीजें हैं वो उनको पता चले, उनकी ग्लोरी उनको पता चले। उसके बाद एम्फेसिस गिवन टू सेल्फ रिलायंस, आत्मशक्ति को एनकरेज किया गया। इन्होंने कहा अपनी डिग्निटी को, अपने ऑनर को, अपने कॉन्फिडेंस को पहचानो और उसके बाद कैंपेन करो। आपके जितने भी ग्रीवेंसेस है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज को लेके, कास्ट मैरिज को लेके, डॉरी सिस्टम को लेके, कोई भी है, आपके स्कूल्स, कॉलेज, एजुकेशन, जिस चीज को भी लेके है, उसके लिए अपना कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के लिए आप फाइट करो। आफ्टर दैट प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, इन्होंने कहा कि भाई हमें तो अपना स्कूल चाहिए। बंगाल नेशनल कॉलेज जो है ये इसी का टैगोर के द्वारा ही जो है वो शांति निकेतन में इंस्पायर किया गया था, और ये उनके साथ अरविंदो घोष के साथ मिलके इनके एज अ प्रिंसिपल इन्होंने इसकी फाउंडेशन भी रखी थी। एंड आफ्टर दैट नेशनल काउंसिल एक्ट जो 1906 में अगस्त 15 1906 को पास किया गया था, वो इसी का एक स्वदेशी मूवमेंट का ही फल आप कह सकते हो, रिजल्ट आप कह सकते हो। और इसको इसलिए सेटअप किया गया था ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो इंडियंस को मिल सके, चाहे वो लिटरेरी सेंस में हो, साइंटिफिक सेंस में हो, या फिर टेक्निकल सेंस में हो, जहां पे नेशनल कंट्रोल हो, इंडियंस का कंट्रोल हो। एजुकेशन जो है वो किसके द्वारा हो, इंडियंस के द्वारा हो और इंडियंस के लिए ही हो। एंड आफ्टर दैट स्वदेशी और इंडिजिनस एंटरप्राइजेस भी है, वो भी लॉन्च किए गए, जैसे कि V.O. चिदम्बरम पिल्लाई ने एक नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइजेस का निर्माण किया। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी तूतीकोरिन में जो है वो लाई गई। इम्पैक्ट इन कल्चरल स्फेयर, तो मतलब इन्होंने नेशनलिस्ट जितने भी थे उन्होंने अपने सॉन्ग के द्वारा, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग लिखे, अमर सोनार बंगला और ये सब, और उसके बाद मुकुंद दास ने या फिर सैयद अबू मोहम्मद ने, इन लोगों ने अपने सॉन्ग्स के द्वारा लोगों को इंस्पायर किया। एंड आफ्टर दैट बाद में चल के तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने भी सुदेश गृहतम लिखा, ऐसा कुछ। फिर पेंटिंग के सेंस में जो अबिंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने जो डोमिनेशन था विक्टोरियन नेशनलिज्म का, उसको जो है वो ब्रेकआउट किया, उसका रिकॉर्ड तोड़ा, और उसके बाद इंडियन आर्ट्स को ये काफी ज्यादा पेंटिंग के सेंस में आगे लेके गए। और तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि थ्रू साइंस, राइटिंग और पेंटिंग जो है, इन लोगों ने इंडिया के कल्चर को एनहांस करना शुरू किया। साइंस के क्षेत्र में किसने? जगदीश चंद्र बोस, आपको नाम याद होगा, बच्चे में जो क्लास 5th और 6th में शायद ये पढ़ना था इनके बारे में, जगदीश चंद्र बोस के बारे में। उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। तो इस तरीके से अपने कल्चरल डेवलपमेंट को वो लोग ज्यादा से ज्यादा आगे लाने की जो है वो कोशिश करने लगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कौन कौन से मेथड यूज करके इन्होंने अपने जो इनकी टेक्निक थी उसको जागृत किया था। आप इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट? तो ऑफ कोर्स लॉर्ड कर्जन थे उनके उस समय, है ना, वायसरॉय। हु सेट अप स्वदेशी बांधव समिति टू प्रोपोगेट द स्वदेशी मूवमेंट? ये अभी अभी मैंने आपको बताया, अश्विनी कुमार दत्ता। प्रेसिडेंट ऑफ INC ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? तो जो आपको लाल बाल पाल तो याद रहता है एज ए एक्सट्रीमिस्ट, है ना, तो बस गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो मॉडरेट थे। जैसे कि पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था इनकी भागीदारी क्या क्या थी, क्या क्या कैंपेन इन्होंने करे थे, किस किस तरीके से ये जो है इंडियंस को जागृत करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर क्या क्या जो है ऑर्गेनाइजेशन ये कर रहे थे ताकि जो इंडियन मासेस है उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया जा सके, इंडिया की ग्लोरी के लिए इंस्पायर किया जा सके, इंडिया के पास्ट के लिए, इंडिया के कल्चर के लिए, या फिर किसी भी सेंस में उनको ये चीजें थी कि लोगों को ये पता चले कि किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इंडिया को।
कंसिडर द फॉलोइंग, स्वदेशी मूवमेंट हैज इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट फॉर बंगाल। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको जो है जब पार्टीशन हुआ बंगाल का 1903 में डिसीजन लेके 1905 में इन्होंने पार्टीशन किया, उसी के बाद इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया था, जब इनको ये पता चला कि ये हमारी यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं। The government decision for partition was made public in 1903, very right। और उसके बाद ये फोर्स में कब आया? अक्टूबर 16, 1905 को। और इसी के बाद स्वदेशी मूवमेंट जो है इन्होंने इस मूवमेंट को मतलब एक डिसीजन लेके कलकत्ता के टाउन हॉल में इसको लॉन्च किया था। The western half was Hindu dominated and eastern half was Muslim dominated. Of course true. So all of the statements above are correct. Consider the following. National Council of Education and System was set up to organize the system of education on August 15, 1906. Very much true. स्वदेशी मूवमेंट के बाद ही इनको अपनी चीज चाहिए थी, तो नेशनल एजुकेशन ऑफ काउंसिल जो है वो सेटअप किया गया था, है ना, इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए। और ये अगस्त 15, 1906 को ही हुआ था। इट वाज टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट। वेरी मच ट्रू, बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज इनका जो मोटिव था वो यही था कि इनको प्रमोट करना है इन चीजों को। Okay, so these all were the question you can expect in prelims regarding this topic, and in each and every lesson I'll be discussing the mains question and prelims question as well. So do not forget to continue and do not forget to follow me up on this platform. I don't know why views are not increasing. If you having any अगर आपको कुछ difficulty face हो रही है, if you're not liking the lesson and you want something else, then please type it in comment box. If you're not liking the lesson also, then also criticize me, but do something. अगर आप ऐसे ही मतलब सिर्फ कुछ भी कमेंट नहीं करोगे या कुछ भी नहीं बोलोगे, तो how will come to know that what all you want? Okay, so feel free to comment us. अगर क्रिटिसाइज करना उसके लिए भी आप फ्री हो, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। ओके, अनटिल अनलेस आप मुझे मेरी गलतियां बताओगे मैं उसे सुधारूंगी कैसे, राइट? सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन। टेक केयर, बाय बाय।